May I come in? Sir? Yes, please. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. All right. Okay. So Devesh is from Kamrup Metropolitan in Assam, Yes, sir. and you have done BTech BE in Mechanical Engineering. Yes, sir. It was integrated. Integrated course. Integrated. All right. And after that, you have worked for IT firm Price Waterhouse Coopers as associate consultant. Yes, sir. All right. Can you describe your job over there? What were your duties and responsibilities? Sure, sir. I'd just like to clarify that I'm still working All right. and right now in the position of senior associate. All right. So basically, my domain of work is data analytics, and our team delivers projects related to data analytics. So I'd like to describe my current project. So basically, this current project is related to a client from US. So basically, they are basically transforming their HR system from a legacy system, which was very disintegrated, into a new integrated platform. So we are helping with the transformation regarding the migration of the legacy data and then the management of the forthcoming data. So we are building the entire data system basically for them. So, as far as your job is related to data analytics and data science, one more term is there, data science. Yes, sir. Both are same or there's a difference? Data science would be a broader term basically. So data science is basically the understanding of broad patterns of data and using it to observe, to mimic human behavior and understand patterns and try to get benefits out of those patterns. So, how would you utilize your knowledge in preventing data theft related issues? Yes, there are a few things that we can do. One is that we can minimize the risk. That would be basically taking into consideration only the data that we need, so that the domain of data relates to only the work-related aspect. Mm-hmm. Secondly, is we can strengthen our systems through firewalls. Some best practices like changing passwords at a regular interval. These things can be deployed at a very ground level. Okay. As you are saying that we will try to install firewall and other, technology related steps will be taken. But again, there is a problem related to VPN, dark web. Most of the time, we are not able to identify who the people are who are causing the problems to the existing mechanism. So how would you deal that kind of situation where we are not able to find out that who is creating this kind of meanness or who is the real perpetrators behind the walls? So that is in fact a very common challenge. All our data systems are under constant threats and constant security breach attempts from different parties. So for that, we can one strategy that companies they deploy is that they limit the access to very selective IP addresses, so that only those who want to, those who are allowed, they can access the data. So that is one strategy that I'm aware of as of now. There are different other strategies also, sir. For example, this firewall method is also one strategy that firms have been using. And these are the one that I can currently recall of. So you are from Kamrup. Yes, sir. Can you tell me some of the most alarming issues of Kamrup Metropolitan? A very recurring issue regarding Kamrup Metropolitan is urban flash floods. This is an issue that has been repeatedly happening a lot of times and has been troubling a lot of people. So that's one. Second is related to pollution. So both air and water pollution have been very rampant in Kamrup Metropolitan. To the fact that the AIQ often people assume that Northeast has very good air quality, but we often get to see 300 AQIs in winters. Even right now, if I'm not wrong, it is around 250. So that is another issue. Third is
illegal encroachment of wetlands is one more. Traffic related issues, wherein traffic congestion is one part of it, and another is rash driving accidents. This has been happening a lot. One more issue that I can recall of is drinking potable water scarcity. It has been, although government has been working on it and a lot of areas have been covered with good water supply, still there is a tanker mafia that has been very activated in Kamrup Metro. There was a lot of talks about applying UCC in Assam, if you can remember. Yes, sir. But still, it is in the pipeline. Yes, sir. Right. So, what would be the possible concerns or what would be the problems associated with the UCC? Why it is still pipeline? Why it cannot be deployed in Assam, where already we have seen the CAA and RC related issues? So if you are going to apply UCC in Assam in today's perspective, then what problem you might think of that it will be having? So number one is that a consensus is very difficult to arrive at in Assam, especially because of the fact that we have more than 50 recognized tribes and groups that has been recognized by the government of Assam, more than 50. Can you name some? Yes, sir. Boro is the largest tribe. We have the Missing tribe, which is the second largest. There is Rangma tribe. Then we have Singpo tribe. Then there is... Okay, that's all. Tell me, what were you telling? Consensus arrival is a very difficult issue, wherein, again, we have this perception of cultural threat is always there because of illegal immigration. So because of that, unification of all the personnel laws is again going to be very difficult. So this is the most broadest reason that I can think of. Another issue is that the migrants are not causing the problem. The minority population over there. Minorities are also opposed to it, but indigenous tribes have been also not very welcoming to the UCC agenda. So the name you have mentioned, they are indigenous tribe. Yes, sir. What is indigenous tribe, by the way? Who the people in the tribal community are known as indigenous tribe? Is there any PVTG in Assam? So as far as I'm aware, in Assam we don't have any PVTGs. Okay, and who are indigenous? I'm not exactly sure of what the definition for indigenous would be, but it would pertain to some groups who have been living in that particular land for centuries, sir. So these, for example, Boros, they have been living in the lower Assam plains for more than 5,000 years. So as far as the internal border skirmishes are concerned, most of the time we find that Assam, Mizoram border disputes are going on. Do you agree? Yes, sir. So how we can solve this problem, apart from that Assam is already facing certain issues related to migration, law and order, right? And apart from that, CAA, NRC, a lot of issues are there. So in this scenario, how will we be able to tackle the border skirmishes or the border related problems? Internal border related troubles in Assam has been very, very recurring theme. Give me 2 concrete steps only to curb such kind of menace. So one would be to get clarity on the physical demarcation. There are different laws because of which confusion arises, and hence the claims. And internal confidence building measures, direct talks between the heads of the states and the police forces as well. That could definitely dissolve a lot of tension, sir. All right. Thanks. Thanks. असम और मिजोरम मेघालय के बीच में कुछ सीमा विवाद है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट है। हाँ सर। तो वो क्या है? असम और मिजोरम के बीच में एक बायरेंगेटा करके जगह है, तो वहाँ पे बेसिकली क्लेम्स अलग अलग हैं। मिजोरम कुछ प्लेन एरियाज़ को क्लेम करती है, असम बोलती है कि वो जगह हमारी है, तो इसके वजह से वो डिफरेंसेस है। और मेघालय में कुछ विलेजेस रिलेटेड अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 120-130 विलेजेस लेके मतलब क्लेम्स है, अलग अलग क्लेम्स है दोनों पर। तो उसमें जो गिव एंड टेक है वो क्या एक स्थायी समाधान हो सकता है और कैसे हो सकता है?
हाँ सर, इनफैक्ट मेघालय के साथ एक रिसेंटली एक वो साइन हुआ था जिसमें कुछ विलेजेस असम ने वो किया और कुछ विलेजेस मेघालय ने लिया। ऐसे करके टेंशन डिसॉल्व हुआ है, पर अभी भी बाकी हैं विलेजेस के क्लेम्स। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो असम को गेटवे माना जाता है, जी सर। थाईलैंड और म्यांमार में अगर कनेक्टिविटी को अगर कर दिया जाए बढ़िया से, तो असम के लिए कैसे वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कैसे मतलब बूम करेगा वो? अगर हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्टिविटी बिटवीन असम, मेघालय टू थाईलैंड, हम लोग का इकोनॉमिक जो बहुत बड़ा एडवांटेजेस आ जाएंगे। अभी हम लोग का इट्स काइंड ऑफ लैंड लॉक्ड एंड हम लोग का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत कम है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम इंडस्ट्रीज सफ़र करते हैं। इनको मार्केट नहीं मिल पाता है, इनका कॉम्पिटिटिवनेस गिर जाता है। अगर हम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो हमारे इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को अच्छा मार्केट और अच्छा प्राइस मिल पाएगा। इसके लिए भारत सरकार कुछ कर रही है, कुछ प्रोग्राम वगैरह? जी सर, IMT हाईवे हम लोग बना रहे हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। उसका अराउंड 70% इज़ कम्प्लीट एज ऑफ नाउ। उसमें मतलब बनाने में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? सर, म्यांमार इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। थाईलैंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इंडिया वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो असम में एक है ना देंग पटकई, देंग पटकाई सर। उससे वहाँ पे एक तो कोयला मतलब कोल माइनिंग होता है, ठीक, और उसे पूर्वोत्तर का अमेजन भी कहा जाता है। तो मतलब आपके हिसाब से किसको प्राथमिकता देंगे? जंगल को मतलब ऐसे ही रहने देंगे, या कि कोल माइनिंग, जिससे कि अर्थव्यवस्था, अगर कोल माइनिंग नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन होगा, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? सर, मैं तो चाहूँगा कि एनवायरनमेंट को प्राथमिकता दिया जाए और जो इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको बंद किया जाए सर। उसका कुछ सोल्यूशन, मतलब जंगल भी, मतलब फॉरेस्ट भी रह जाए और एक उस पर भी ना असर पड़े। किसी स्टेट वगैरह से इसका एग्जांपल, मतलब कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे झारखंड हुए या फिर? जी सर, हम ओपन कास्ट माइनिंग अवॉइड कर सकते हैं, एक तो उससे हमारे फॉरेस्ट बच सकते हैं। टनल माइनिंग होगा, उसको अच्छे से हम लोग अगर फिलअप करते हैं, उसको ऐसे ही ना छोड़ दें, तो उससे भी हमारे फॉरेस्ट काफ़ी बचे हुए रहेंगे सर। और फिलहाल हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके उसको मैप कर सकते हैं कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे इलीगली हो रहा है, थ्रू सैटेलाइट मैपिंग एंड उससे। असम का जो चाय उद्योग है, जी सर। एक समय में वो बहुत फेमस था, अभी जैसे उसका जगह ले रहा है श्रीलंका वगैरह। जी सर। तो उसके हम स्मार्ट टी प्लांटेशन या उसके ब्रांडिंग्स के थ्रू हम उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, या कैसे बढ़ा सकते हैं? जी सर, असम का टी ऑलमोस्ट 55% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का टोटल प्रोड्यूस में, और ग्लोबली भी काफ़ी एक्लेम्ड है, पर रिसेंटली बहुत इश्यूज आ रहे हैं सर। तो एक स्ट्रेटेजी ये है कि हम ब्रांडिंग पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और ब्रांडिंग मतलब कैसे करेंगे? ब्रांडिंग मतलब फोकस उस पर, जैसे आसाम ऑर्थोडॉक्स टी एक होता है सर, यूनिक वैरायटी ऑफ टी होता है। उसमें टी लीव्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है और वो बहुत कम जगह में पाया जाता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम लोग पॉपुलराइज कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स, सो दैट वाइडर मार्केट उसको मिल पाए। अच्छा, वहाँ पे असम में एक अहोम साम्राज्य का मोइदम एक था ना, उसके बारे में कुछ? रिसेंटली अभी चराइदो मोइदम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। वो मोइदम्स बेसिकली ब्यूरियल माउंट्स होते हैं। पहले जैसे राजाओं को दफनाया जाता, उनके ऊपर ऐसे सॉयल और लैंड देके एक काइंड ऑफ, जैसे बुद्धिज्म में भी हम लोग देखते हैं वैसा टाइप का करते थे, उसी को मोइदम बोला जाता है। और ये बेसिकली असम मतलब अहोम किंग्स को ही मोइदम्स में वैसे उस तरीके से ब्यूरियल ग्राउंड्स में किया जाता था। अच्छा, अभी इसे एक वर्ल्ड में एक वो चल रहा है कि US को लेके कि इसकी जगह अभी ग्लोबल लीडर मतलब कौन बन सकता है, किसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो इस पर क्या विचार हैं? मतलब US की जगह कौन ले सकता है? अभी भारत ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? जब मैं तो चाहूँगा भारत ही ले। मतलब उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ सर, मैं तो बोलूँगा कि हम लोग का इंटरनल चुनौतियाँ थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम लोग का, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी हमें अभी हासिल करना है, डिफेंस सिक्योरिटी भी हमें हासिल करना है, और सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो
अगर ये सब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन चैलेंज यूएस एज। अच्छा, अफगानिस्तान जो वहाँ पे तालिबान आया है जब से, तो भारत तो डायरेक्ट तो उससे कोई संबंध तो रख नहीं रहा है, पर वो बैकडोर से उससे बातचीत कर रहा है, तो क्या इसकी मतलब कोई मजबूरी है या फिर उसका कोई अलग मतलब कुछ मोटो है? सर अफगानिस्तान हमारा एक नेबरिंग टेरिटरी है सर, लैंड बॉर्डर्स है हमारे, ऑल्दो बॉर्डर इज़ करेंटली अंडर पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन, बट एक नेबर होने के तहत हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पे जो भी रेजीम है उनके साथ मिनिमम कांटेक्ट मेंटेन करके रखें। प्लस अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते इम्पोर्टेंट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो रीजनल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्लस ये भी इंश्योर करेगा कि वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स है या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इंडिया के अगेंस्ट काम ना करे बेसिकली। तो डायरेक्ट मतलब बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब चुनौतियाँ, मतलब क्या दिक्कत आ रही है डायरेक्ट में? मोर और लेस तालिबान का एक बहुत ही टेररिस्ट रिलेटेड परसेप्शन रहा है और है, मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने वैसा हिस्ट्री रहा भी है। तो और करेंटली उनका जो रेजीम है वो भी बहुत ही बेसिकली हम जैसे देख रहे हैं कि वुमेंस के अगेंस्ट में है। थोड़ा टाइम हो गया, उन्होंने वुमेंस एजुकेशन कम्प्लीटली बैन कर दिया, तो ये सब के तहत हम डायरेक्टली उनसे करना एक अच्छा आइडिया नहीं समझ रहे हैं सर। ट्रम्प जो है ग्रीनलैंड पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसमें उनका मतलब क्या, क्यों दिखा रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ? सर ट्रम्प बेसिकली उनको वो यूनिलेटरली क्लेम कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनका है और उनको वो चाहिए बेसिकली दो चीज़ों के लिए। एक तो स्ट्रेटेजिकली बोल रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फुल आर्टिक को बचाने के लिए फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड चाइना, एंड पर ये सेकेंडली बोला जा रहा है कि वो ऑल्दो उन्होंने ओपनली क्लेम नहीं किया है, पर ये बोला जा रहा है कि वहाँ के वास्ट रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस और बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए यूएस उसको क्लेम कर रहा है। ठीक। नरेश मुझे ये बताइए, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी, मतलब क्यों आना चाह रहे हैं फिर, मतलब पीडब्ल्यूसी को छोड़ करके आप इस नौकरी में फिर? सर एक ही इंटेंट है सर, मैं अपने स्टेट और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बेस्ट करना चाहता हूँ। और कुछ मोटो है आपका? सर फिलहाल तो यही आता है। मैं यही बताइए, असम में जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी है उस पर कुछ आपका राय है इसमें? सर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी असम में अभी तक एज पर माय नॉलेज सर नहीं इम्प्लीमेंट, अभी तक कुछ नहीं हुआ है उस पर मुझे इसके बारे में थोड़ा विस्तार में देखना पड़ेगा सर। ये बताइए, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग असम टुडे राइट नाउ? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज which is also an environmental challenge is flood. 40% area is prone to flood. How should Assam deal with the flood and erosion? सर इसके लिए हमें थोड़ा एक स्ट्रेटेजिकली थोड़ा ब्रॉड स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा, जैसे रिवर बेसिन मैनेजमेंट। इस पर गवर्नमेंट कुछ कर रही है, इस पर कुछ काम कर रही है? जी सर, एक आसाम रिवर वैली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें हम लोग रिवर बेसिन हिसाब से काम कर रहे हैं, ना ही सिर्फ रिवर को देखें, बेसिन में से उसके फ्लोज मॉनिटर करना, उसका इरोशन मॉनिटर करना, वो कर रहे हैं। प्लस एक ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड भी है हमारा, वो भी ब्रह्मपुत्र, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आर इमर्जिंग फ्रॉम ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सर। टी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम कुछ बता सकते हैं या उसका कुछ सॉल्यूशन? फिर प्रॉब्लम जो है उसका कुछ सॉल्यूशन बताइए जो अभी फेस कर रहे हैं सामने भी लोग। सर मेजर प्रॉब्लम इज़ डिक्लाइनिंग वर्ल्ड मार्केट शेयर। बहुत सारा कंपटीशन हमें मिल रहा है जैसे केनिया से, श्रीलंका से, तो हमारे मार्केट को बहुत वो हो रहा है। सेकेंडली क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंज है जिसकी वजह से यील्ड्स वगैरह काफ़ी कम आए हैं। थर्ड, हमारे टीम में बहुत सारे रेसिड्यूज मिले हैं, केमिकल रेसिड्यूज, उसके वजह से भी थोड़ा परसेप्शन ख़राब हो गया है, तो ये भी हो रहा है। क्या है सर सॉल्यूशन, क्या है ये बताइए इसके लिए? अच्छा आप सॉरी सर, सोल्यूशन है कि हम थोड़ा ऑर्गेनिक के तरफ मूव करें, जिसमें हम ये हमारे ब्रांडिंग के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा टी इंडस्ट्री का। सेकेंडली ये है कि हम थोड़ा नए मार्केट्स एक्सप्लोर करें, जैसे हमारे
असम का टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट ईरान रहा है, पर ईरान में इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें न्यू मार्केट्स भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थर्ड ये है कि बहुत सारी स्मॉल टी ग्रोअर्स है, अराउंड 60,000 स्मॉल टी ग्रोअर्स, और उनके पास हमेशा फाइनेंशियल क्रंच होता है, बहुत इश्यूज होते हैं, तो उनको थोड़ा एम्पावर किया जाए, जैसे कि वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ इस सेक्टर में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कुछ बताइए, असम का क्या उसमें रोल रहा है? सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली पहले लुक ईस्ट में हम लोग थोड़ा इकोनॉमिकली ज़्यादा फोकस थे। एक्ट ईस्ट में हम लोग स्ट्रेटेजिकली भी देख रहे हैं, और स्ट्रेटेजिकली जैसे इंडो पैसिफिक की तरफ एशियन कंट्रीज़ के क्लोज कांटेक्ट और पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे भी हम वो कर रहे हैं। तो इसमें असम में जैसे अभी असम ने बहुत सारा असम भूटान के साथ अपने रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट लिंकेज के लिए भी काम किया जा रहा है करेंटली। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे सिलचर से होके जाता है IMT हाईवे, ये सब बांग्लादेश के साथ भी हम लोग काम कर रहे थे, अभी थोड़ा इंस्टेबिलिटी की वजह से उसमें इश्यूज आ गए हैं सर। NRC के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, चैलेंजेस और इम्प्लीकेशन उसका? सर NRC में हमें ऐसा 19 लाख अराउंड 19-20 लाख मिले थे जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आ गए थे, और बहुत सारा काइंड ऑफ एक नेगेटिव एनवायरनमेंट भी आ गया था। नहीं, कुछ 5 चैलेंजेस मुझे बताइए NRC से जो फेस किए हैं। सर करेंटली असम गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस NRC को नहीं मानते हैं और वापस से हम उसको करेंगे। तो NRC के रिलेटेड चैलेंजेस अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1 तो डॉक्यूमेंट बहुत, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेरी पुअर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर एक परसेप्शन थ्रेट भी रहता है कि जिनके पास जो वहाँ के लोकल हैं पर उनके पास नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको थ्रेटन किया, मतलब बेसिकली थ्रेटन किया जाएगा रिगार्डिंग सिटीजनशिप, ये भी एक इशू रहता है। एक मेजर इशू है कि कट ऑफ डेट 1971 से डिसाइड किया गया था फॉर सिटीजनशिप, पर अभी उसमें फुल्ली वहाँ के लोग उसको नहीं मानते हैं। लोग बोलते हैं कि उसको 1947 या फिर 1951 तक लेके जाओ, सो दैट अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन दैट हैपन बिटवीन 51 to 71 उसको रिवर्स किया जा सके। ये चैलेंज एक मेजर चैलेंज है। कुछ इम्प्लीकेशन बता सकते हैं इसका? रीजनल इंस्टेबिलिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द एक बहुत बड़ा जैसे हमने देखा कि एडवांटेज आसाम होने वाला था 2020 में, उसमें जापान के PMB उस टाइम के आने वाले थे, पर NRC रिलेटेड इंस्टेबिलिटी की वजह से उसको कैंसिल किया गया, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे जो आने वाले थे उसको डिस्टर्ब हुआ। एक बिजनेस एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है अपार्ट फ्रॉम सोशल इंस्टेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह के भी चांसेस रहते हैं। कुछ मेजर ट्राइब्स ऑफ असम बताइए, और उनका इशू क्या है वहाँ पर अभी जो फेस कर रहे हैं वहाँ पे ट्राइबल पीपल वहाँ पर? जी सर, सर बोरो ट्राइब जो सबसे बड़े ट्राइब हैं, उनका रिसेंटली एक एथनिक क्लैश हो रहा था टी ट्राइब्स के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एथनिक क्लैशेस बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज़, लोकल ट्राइब्स, दैट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज। सेकेंड इज़ सिक्स्थ शेड्यूल इंक्लूजन के लिए भी बहुत सारा डिमांड कंटिन्यूसली आते रहता है। हमारे 3 ऑटोनोमस काउंसिल्स ऑलरेडी है, पर जैसे एक सोनवाल ट्राइब है, वो लोग भी, और उसको बेसिकली जितने ट्राइब्स हैं वो अपने लिए 6 शेड्यूल का डिमांड करते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन का भी एक चैलेंज रहता है सर। और हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है थोड़े, जैसे MMR आसाम का वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसमें भी हम अगर देखें कि STs जो ट्राइब्स हैं उनके MMR स्पेशली ज़्यादा होते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। सर अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं सर। स्किल जो है, स्किल लेवल्स आर नॉट एडिक्वेट टू मैच द करेंट डिमांड्स ऑफ दिस मार्केट। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी है सर, 85% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें हम अगर ट्राइबल्स को देखें उनका और ज़्यादा होता है। ठीक मैम। आपने अभी जो असम में मिशन वसुंधरा का प्रोजेक्ट सुना है? जी मैम। क्या है वो? मिशन वसुंधरा वाज ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कि जितने लैंड रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटाइज किया जाए,
और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसको हम डिजिटली सॉल्व करें, और जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसको हम लोग एक डिजिटल मीडियम के थ्रू मतलब लोगों को उसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है एज ए IT कंसल्टेंट, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, अपने वर्क एक्सपीरियंस को? मैम इसको एक ब्रॉड टर्म में मैं बोलना चाहूँ तो इसको मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करूँगा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी बहुत सारा डिसीजन मेकिंग एडहॉक तरीके से जो होता है उसको रिप्लेस करके डेटा ड्रिवन उसमें मैं लाने का कोशिश कर सकता हूँ मैम। और मैनेजमेंट ऑफ डेटा उससे हम क्या क्या लैकिंग एरियाज़ है, कहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैं करना चाहूँगा। उल्फा पीस अकॉर्ड का सुना है आपने? जी मैम, क्या है? ये अकॉर्ड 2023 में हुआ था। तो बेसिकली दो मेन फैक्शंस ऑफ उल्फा है, एक औरोबिंदर राजकुआ, एक पोरस बरुआ। तो औरोबिंदर राजकुआ दे वर द प्रो टॉक्स फैक्शन। उन्होंने एक डील साइन हुआ था असम गवर्नमेंट और औरोबिंदर राजकुआ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने आर्म्स गिव अप कर दिया। सो और they demanded the full implementation of the Assam Accord. But right now, Polis Burwa faction, they are not aligned with the talks, and Ulfa is again there are movements being noticed among Ulfa for. इंटरनल जो सिक्योरिटी असम की वो इफेक्ट हो रही है कैसे? मैम अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो दो मेन कंट्रीज़ है, म्यांमार और बांग्लादेश, दोनों में इंस्टेबिलिटी है। और इसमें एक जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो रीबैंड करके अपने एजेंडास को आगे कर पाए। तो ये एक थ्रेट अभी थोड़ा सा आ रहा है मिलिटेंसी से। जो आर्टिफिशियल फ्लड है जी मैम, वो जो गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी बनाने में कैसे बाधित कर रहा है? मैम फ्लड की वजह से पूरा जो डेली लाइफ है वो हॉल्ट हो जाता है। तो स्मार्ट सिटी तो अफेक्ट कर ही रहा है, उससे पहले ही मतलब हम लोग जो डे टू डे एक्टिविटी है वही स्टॉप हो जा रहा है मैम। पर स्मार्ट सिटी के एज इन लाइक जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, जैसे रोड डेवलपमेंट किया है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो काम किया है, उस पे हमको लॉसेस मिल रहे हैं। बिकॉज ऑफ फ्लड्स क्या होता है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी का वो लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से भी डेथ्स हो जाते हैं। तो ये सब इश्यूज है। आप मुझे बताएं जो फ्लड फोरकास्टिंग में जो स्टैटिक्स का क्या यूज हो सकता है? आपने MSc की है। हम लोग ये पैटर्न ऑब्जर्व करके बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके वॉल्यूम्स, उसका इंटेंसिटी हम लोग अंडरस्टैंड करके किस टाइम पे डिसिल्टिंग करना है, किस लेवल पे हमें ड्रेनेज सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है, बनाना है, ये सब में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं मैम। जी I would like to ask one more question. जी If you are going to deport the Bangladeshi people, according to which act or what is the legal backup to deport any citizen to his native country, and who are the party concerned? The state is concerned or the Home Department is concerned? Who is concerned? I'm not very aware about it in much detail, but one thing I know is that we have Assam Immigration Deportation Act, which was enacted way back in 1947 or 19. Okay, so your formal interview is over. Thank you.